Oh no. Alright, it's okay, it's okay. Stay right there. Stay right there. Good shot, okay? Good shot. Come here. Come here. Come here, come here, come here. It's okay. It's okay. It's okay. Just gotta get you untangled here. There we go. There we go. Part 6 of 6. With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule dan suprememastertv.com/ls. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV. In the depth of the forest, he survived on wild berries and root vegetables. His only companions were the animal people who had become his friends. Venerated Shivapuri Baba Vegetarian, Wandering Sannyasin and Right Life Teaching Part 1 of 2. Continue watching to find out more. Please go vegan now. God will be very happy with you if you do. Reverend Pastor Robert Monroe, vegan. उत्तरी भारत में आकर्षक राजस्थान की सड़कों पर घूमते समय राजस्थानी लोग एक दूसरे का स्वागत राम राम सा के साथ कर सकते हैं, जिसका स्थानीय भाषाओं में से एक राजस्थानी में अर्थ है नमस्ते। प्रिय दर्शकों, मैं रानी हूँ। दयालु राजस्थानी लोग चाहते हैं कि आपका जीवन प्रेम, करुणा और आंतरिक ज्ञान से भरा रहे। पूज्य शिवपुरी बाबा शाकाहारी, भ्रमणशील सन्यासी और सही जीवन की शिक्षा 2 भागों के भाग 1 में आपका स्वागत है। When Remy goes to bed, he watches over his brother who is sleeping. Marnie always wants to see what Remy is doing. Be involved, Marnie, and play. Oh man! To see how they can be so sweet together is really awesome. Happy birthday to you, Remy. For me, it's been very special that I had the chance to become a mom. My purpose to give them a super happy life. Peace is happening around our world. Peace News number 20 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
October 2023, a two-day conference convenes in Malta with 65 countries participating to discuss the 10-point peace plan of the President of Ukraine, or Ukraine, His Excellency Vladimir Zelensky, a Shining World Leadership Award for Bravery Laureate, to end the war in Ukraine, or Ukraine. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world. पूज्य शिवपुरी बाबा शाकाहारी या श्री गोविंदानंद भारती एक हिंदू संत, रहस्यवादी और भ्रमणशील तपस्वी थे। उन्होंने स्वधर्म की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है सही जीवन, जीवन का एक प्राचीन तरीका। दुनिया भर में उनकी तीर्थ यात्राएं मुख्य रूप से पैदल होने के कारण उन्हें मलयाली मैंगलन की उपाधि मिली। (1826) में भारत के केरल राज्य में एक ब्राह्मण परिवार ने जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के जन्म का स्वागत किया। यह परिवार नंबूदरी वंश या ब्राह्मण वंश की उपजाति से संबंधित था। परिवार के पूर्वजों कभी मैसूर के टीपू सुल्तान के दरबार में मंत्री पद पर थे। जयंथन नंबूदिरीपाद के नाम से जन्मे श्री गोविंदानंद भारती अपनी पहली सांस भी एक मुस्कान के साथ लेते हुए दुनिया में आए थे। उनके दादा अच्युतम के अनुसार यह एक संकेत था कि एक महान सन्यासी इस दुनिया में आए थे। सन्यासी एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य त्यागी या तपस्वी से है। उनके दादाजी ने आगे घोषणा की कि यह पारिवारिक वंश इस सांसारिक धरातल पर अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के बाद इस असाधारण बच्चे के जन्म के साथ समाप्त हो जाएगा। बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद जयंथन नंबूदिरीपाद और उनकी जुड़वा बहन अपने दादा दादी अच्युतम और उनकी पत्नी के साथ रहते थे। उनके दादा एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे जो सितारों का अवलोकन करने और ज्योतिषीय गणना करने में बहुत कुशल थे। एक उन्नत दूरबीन का उपयोग किए बिना वह नग्न आंखों से 1 इंच का अंतर भी माप सकते थे। वैदिक धर्म में पूर्णता तक पहुंचने के वैसे 2 मार्ग हैं। पहला है 4 आश्रमों या जीवन के चरणों का पालन करना, शिक्षा प्राप्त करना, एक गृहस्थ के रूप में कर्तव्यों को पूरा करना, एक परिवार की स्थापना करना और बेटों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रशिक्षित करना, ब्राह्मण जाति के अनुष्ठान करना और अंत में वनवासी बनना, जब कोई सांसारिक बंधनों को त्यागने के लिए तैयार हो। इन कर्तव्यों को पूरा करने में लगभग 42 वर्ष लग जाते हैं। हालांकि यदि कोई शुरुआत से ही सब कुछ त्यागने का विकल्प चुनता है तो सीधे अंतिम चरण में प्रवेश करना दूसरा मार्ग है, अर्थात संसार को छोड़ देना। 5 साल की उम्र में जयंथन नंबूदिरीपाद ने जीवन का ब्रह्मचर्य स्नातक छात्र चरण शुरू किया। जब वह 12 वर्ष के थे तब तक उन्होंने पहले से ही 4 प्रमुख वेदों, साथ ही धनुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में महारत हासिल कर ली थी। उनके दादा, जो उनके जीवन के तीसरे वानप्रस्थ चरण में थे, वह उनके गुरु बने और उन्होंने 1840 तक जयंथन नंबूदिरीपाद का अध्यापन पूरा किया। एक बार जब जयंथन नंबूदिरीपाद 18 वर्ष के हो गए तो उनके दादाजी ने उन्हें अपनी घरेलू जिम्मेदारियां सौंप दी और एक सन्यासी के रूप में अमरकंटक के जंगलों में ध्यान करने के लिए चले गए। यह जानने पर जयंथन नंबूदिरीपाद ने अपने दादा का अनुसरण करने का फैसला किया और आश्रम के अन्य चरणों को छोड़कर सन्यासी बन गए। The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest,
for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. उन्होंने अपनी बहन को घरेलू जिम्मेदारियां सौंपी। उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति का असली उत्तराधिकारी बताते हुए एक वसीयत तैयार की और फिर अपने दादा के साथ शामिल हो गए। जंगल में 7 साल तक ध्यान करने के बाद उनके दादा का निधन हो गया। उस समय जयंथन नंबूदिरीपाद 25 वर्ष के थे। इस दुनिया को छोड़ने से पहले उनके दादाजी ने भविष्यवाणी की थी कि जयंथन नंबूदिरीपाद इसी जीवन काल में आत्मज्ञानी हो जाएंगे। उनके दादाजी ने उनसे वादा किया था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वह आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहने वालों की मदद के लिए दुनिया भर में यात्रा करेंगे। इसके साथ ही उनके दादाजी ने यात्रा खर्चों का भुगतान करने में मदद करने के लिए कीमती पत्थरों का एक बैग सौंपा और उन्हें सूचित किया कि उनके परिवार में किसी ने भी भीख नहीं मांगी है। अपने दादा की मृत्यु की रस्में निभाने के बाद जयंथन नंबूदिरीपाद ने सन्यासी के रूप में दीक्षा प्राप्त करने के लिए श्रृंगेरी शारदा पीठम मठ का दौरा किया। तभी उन्होंने गोविंदानंद भारती का नाम लिया। उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अपना ध्यान करना शुरू किया। अंत में उन्होंने नर्मदा वन के अंदर आगंतुकों से दूर एक बहुत एकांत स्थान चुना। श्री गोविंदानंद भारती ने ऋतंभरा प्रज्ञा का मार्ग चुना था, जो सभी रूपों और विचारों से परे ईश्वर का निरपेक्ष ज्ञान है। जंगल की गहराई में वह जंगली जामुन और जड़ वाली सब्जियों पर जीवित रहे। उनके एकमात्र साथी पशुजन थे, जो उनके मित्र बन गए थे। आत्मज्ञान की इस कठिन यात्रा में 25 वर्ष लगे। अपने शब्दों में श्री गोविंदानंद भारती ने अपने आत्मज्ञान का वर्णन इस प्रकार किया है। God came like a flash, and all questions were answered, and all problems were solved forever. Vegan, forward with healthy and spiritual growth. वफादार दर्शकों, आइए अपने हृदय में ईश्वर का चिंतन करें। हम तुरंत वापस आएंगे यहीं सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर। He was found as a stray, just ended up on the street. Hello? He's microchipped. The rescue called the person on his microchip. That person didn't want him back. So I ended up adopting him. Huskies talk, but Zeus, he didn't talk at all when I first got him. Come on, let's get up. He was just this really silent, quiet dog. And then one day, he has not stopped since. I love you. I love you. I love you. He's always smiling at me. Come here. Say hi. वापस स्वागत है। पूज्य शिवपुरी बाबा शाकाहारी, भ्रमणशील सन्यासी और सही जीवन की शिक्षा 2 भागों की भाग 1 में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 50 वर्ष की आयु में श्री गोविंदानंद भारती ने दुनिया भर में 40 साल की यात्रा शुरू की, मुख्यतः पैदल।
केवल असाधारण अवसरों पर ही उन्होंने जहाज या ट्रेन की यात्रा का सहारा लिया। उनकी तीर्थ यात्रा उत्तरी भारत में शुरू हुई। कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने श्रद्धेय श्री रामकृष्ण परमहंस शाकाहारी से मुलाकात की, जो उस समय पूरे भारत में व्यापक रूप से मशहूर और प्रिय हो चुके थे। बड़ौदा में उनका आकस्मिक मिलन श्री अरबिंदो घोष शाकाहारी से हुआ, जो उस समय बड़ौदा के गायकवाड़ के लिए सिविल सेवा में लगे हुए थे। श्री अरबिंदो बाद में देश और विदेश में भारतीय आध्यात्मिकता के एक महत्वपूर्ण व्याख्याता के रूप में उभरे। भारत छोड़कर श्री गोविंदानंद भारती खैबर दर्रा पार करके अफगानिस्तान पहुंचे, जहां ऐसा लगता है कि उनकी मुलाकात पहले आगा खान हसन अली शाह से हुई, जिससे इस्माइली परंपरा के बारे में उनकी समझ गहरी हुई। उन्होंने साझा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान को काफ़ी समय समर्पित किया, जो तब और अब इस्लाम के भीतर आध्यात्मिक जीवन का एक उल्लेखनीय केंद्र है। वहां से वह फारस और फिर मक्का गए। ब्रिटिश अकादमिक और लेखक जॉन बेनेट ने कहा कि श्री गोविंदानंद भारती की इस्लाम के बारे में समझ इतनी संपूर्ण थी कि जब वह पहली बार 1961 में श्री गोविंदानंद भारती से मिले तो उन्होंने यह मान लिया कि वह संत एक मुस्लिम थे। There is a special way of speaking about God that seems to characterize the true Muslim. It combines the sense of God as transcending the creation with that of his intimate presence within the human soul. It was just in this way that the Shivapuri Baba spoke. Later, I came to understand that he spoke from a direct experience of the mystery of the divine totality, transcendent, immanent, personal, and yet absolute. This enabled him to express the truth of all religions in such a way as to make the listener feel that he was a Hindu, a Buddhist, a Muslim, or a Christian, and each of them completely without reservation. अर्ध रेगिस्तानी इलाके के मध्य से 12,450 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए श्री गोविंदानंद भारती ने ईसाई धर्म के जन्म स्थान मक्का से यरूशलेम तक की यात्रा की। वह 1890 में यरूशलेम पहुंचे और कुछ समय तक वहीं रहे। इसके बाद इस्तांबुल, तुर्की और फिर बाल्कन से होते हुए ग्रीस की ओर चले। रोम, इटली पहुंचने के बाद श्री गोविंदानंद भारती ने वेटिकन का दौरा किया। ईसाई धर्म के बारे में अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रोम में कुछ समय बिताया। इसके बाद श्री गोविंदानंद भारती ने इटली और विभिन्न यूरोपीय देश की यात्रा की। अपनी यात्राओं के दौरान उन्हें दौरे पर आए अधिकांश देशों में शासक सम्राट के सामने पेश किया गया। उन्होंने जर्मन साम्राज्य के महाराज कैसर विल्हेम द्वितीय और नीदरलैंड की महारानी एम्मा से मुलाकात की। 1896 में उन्हें इंग्लैंड जाने का निमंत्रण मिला, जो कथित तौर पर महारानी विक्टोरिया के भारतीय सचिव मुंशी अब्दुल करीम द्वारा दिया गया था। श्री गोविंदानंद भारती, जिन्हें इंग्लैंड में गोविंदा के नाम से जाना जाता है, ने 1896 से 1901 तक 4 साल बर्किंघम पैलेस में एक शाही अतिथि के रूप में रहकर बिताए। भारतीय लोगों के प्रति महारानी का स्नेह गहरा था, विशेषकर उनके आध्यात्मिक जीवन में उनकी गहरी रुचि थी। अपनी डायरी में वह इस रहस्यमय भूमि के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त करती हैं। इस पूरी अवधि के दौरान श्री गोविंदानंद भारती ने महारानी के साथ 18 निजी बैठकें की और इन्हें बेहद निजी बताया। ऐसा कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को योग की सीधी शिक्षा मिली थी। हालांकि इन मुलाकातों को संभवतः रानी की डायरी में सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में व्यापक संपादन प्रयासों के दौरान उन्हें पूरी बारीकी से हटा दिया गया होगा।
श्री गोविंदानंद भारती विश्व प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय शाकाहारी के साथ कुछ समय के लिए मॉस्को में रहे। टॉल्स्टॉय के घर के सेवक ने उत्सुकता से श्री गोविंदानंद भारती से भारतीय व्यंजन सीखे। एक बार श्री गोविंदानंद भारती को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शाकाहारी से मुलाकात के लिए देर हो गई। उनके अंतिम आगमन पर शाह ने कथित तौर पर व्यंग के साथ उनकी देरी पर टिप्पणी की, जिस पर श्री गोविंदानंद भारती ने शांति से उत्तर दिया, It is you who are slaves of time. I live in eternity. हम इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में आदरणीय श्री गोविंदानंद भारती के जीवन और गहन सच्चाइयों के बारे में और अधिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं। पूज्य शिवपुरी बाबा शाकाहारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें shivpuri-baba.com। Vegan side effect. Don't bother to try visiting. Hells hate you. Noble viewers, thank you for your presence today. Join us again on Sunday, April 21st for Venerated Shivpuri Baba Vegetarian, Wandering Sannyasi and Right Life Teaching Part 2 of 2. Coming up next is Appearance Doesn't Always Reflect Inner Attainment Part 5 of 10 on Between Master and Disciples here on Supreme Master Television. May we always carry in our hearts the spirit of compassion and kindness. Be vegan, make peace, do good deeds, have a Godspeed.